Good morning, friends. Today we are going to start with problem number 3. Just refer problem number 3 from your question set. Problem number 3. The following is the receipts and payment account of a Lion Club for the year ended 31st March 2016. So they have given you receipts and payments. Under receipts and payment you have opening balance of cash, bank, then there is a subscription received, then there is a entrance donation, then there is an interest received, sale of asset, miscellaneous income, receipt at coffee room, soft drinks, swimming pool, tennis court. These are the receipts done at various amenities provided by the Lions Club. Various amenities provided by the Lions Club. They have made a receipt at coffee room, soft drinks, swimming pool and tennis court. In the same manner, there is a payment of salaries. Creditors, they have given a payment. Creditors will be for, these are the services which they are providing, coffee room, soft drinks, all these services. So there will be a creditors and they have made a payment to creditors of 15,20,000. Then there is a purchase of printing and stationery, there is a postage, there is a telephone and telex expenses, repairs and maintenance. You have glass and table linen, that is related with crockery and cutlery. Garden upkeep, upkeep is garden maintenance. Then there is a membership fees, insurance expenses, electricity, and you have a closing cash and bank balance. Further, what they have given, the assets and liability as on 1st April 2015 were as follows. You have a net fixed asset, that means on 1st April 2015. Now this receipts and payment also belongs to the year 2015-16, that is 1st April 2015 to 31st March 2016. ये आपको जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है वो ये पर्टिकुलर पीरियड का they have given. Now further what they have given, the assets and liability as on 1st April 2015. These all will be useful for preparing the opening balance sheet. Opening balances they have given. Our year is getting started on 1st April 2015. 1st April 2015 को ये सब balances थे. And this will be useful for preparing the opening balance sheet. What are those things they have given? Fixed asset net, that means after depreciation the value of fixed asset is 5 lakh. There is a stock, that is closing stock of last year and opening stock of current year. This stock will be as regards to the services which they are providing or goods which they are providing, that is a coffee, soft drinks and all these things they are providing, the club is providing. उसका स्टॉक पिछले साल के क्लोजिंग में या करंट ईयर के ओपनिंग में कितना था, 3,80,000. Then there is a investment in 12% government securities, 5 lakh. Outstanding subscription, पिछले साल subscription आना बाकी थे 12 लाख के. Then there was a prepaid insurance. Last year you have made extra payment of insurance. That means prepaid insurance लास्ट ईयर आपने एडवांस में पे किया तो कौन से ईयर करेगा, करंट ईयर का. और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर रिसीवेबल था तो इट विल अज्यूम दैट इट विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर. देन देयर इज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स. लास्ट ईयर के क्लोजिंग क्रेडिटर्स या करंट ईयर के ओपनिंग क्रेडिटर्स इज 1,12,000. Then there was a subscription received in advance. पिछले साल कुछ members ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया होगा तो वो एडवांस में सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर दिया है, यानी वो कौन से ईयर करेगा, 2015-16. Entrance donation received pending membership. That means some of the supposed to be members, यानी जिसने newly ज्वाइन किया होगा उन्होंने एंट्रेंस डोनेशन दिया है 1 लाख का. पेंडिंग मेंबरशिप यानी उनका पैसा आपने ले लिया है लेकिन अभी तक उनको मेंबरशिप नहीं दी है. मेंबरशिप में भी सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन. ओनली इफ दोज पीपल सेटिस्फाई दोज कंडीशन then only they will be regarded as membership, otherwise their amount will be refunded.
तो ये आपने 1 लाख रुपए कुछ लोगों से एंट्रेंस डोनेशन लिया है, लेकिन उनको अभी तक मेंबरशिप दी नहीं है। तो ये जो एंट्रेंस डोनेशन है, इट इज लाइक यू हैव टेकन अ लायबिलिटी, इट विल बी शोन एज अ लायबिलिटी। ग्रेच्युटी फंड, it's also a fund which are taken from the members. They are also a liability. Gratuity fund is also your liability. Now what are the adjustments they have given? The following adjustments are to be made while drawing up the accounts. Subscription received in advance as on 31st March 16. That means current year में you have received in advance 31st March 16 यानी current year में you have received in advance 18,000 from certain members. Second one, outstanding subscription as on 31st March 16 were 7,000. यानी करंट ईयर में भी कुछ लोगों का सब्सक्रिप्शन फीस आना बाकी है, that is 7,000. Then there is an outstanding expenses, salaries 8,000 and electricity 15,000. आपको सैलरीज 8,000 रुपए पे करना बाकी है और इलेक्ट्रिसिटी का 15,000 रुपए का बिल बाकी है एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2016. Then there is a 50% of entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 16. Point number 4 as well as point number 7, if you look at a 7, what they have given? A sum of 20,000 received in October 15. October 15 यानी करंट ईयर में. करंट ईयर अपना कौन सा है? 1 अप्रैल 2015 से 31st March 2016. तो अक्टूबर 15 में you have received 20,000 as an entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was to be made on 3rd June 16, that means next year. अब हुआ क्या देखिए, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 को कंबाइनिंगली वी विल रीड टुगेदर विद द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के जो डिटेल्स है। अब ये चारों चीज को मैं कंबाइन कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। पॉइंट नंबर 4 को मैं कंबाइन कर रहा हूं टुगेदर विद पॉइंट नंबर 7 एंड एट द सेम टाइम आई एम रीडिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और उसके अलावा ओपनिंग बैलेंसेस जो दिए गए आप। अब हुआ क्या देखिए, अगर मैं ओपनिंग बैलेंसेस देखता हूं तो ओपनिंग बैलेंसेस में उन्होंने दिया है एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग मेंबरशिप, यानी आपने कुछ लोगों से 1 लाख रुपए लिए थे और उनको अभी तक मेंबरशिप अलॉट नहीं की थी, यानी आपके पास लोगों का 1 लाख रुपया पड़ा है। उसके साथ साथ अगर मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट देखता हूं तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड अगर आप देखोगे तो वहां पे भी एंट्रेंस डोनेशन 1 लाख रुपए है। इसका मीनिंग क्या है कि पिछले साल में आपने 1 लाख रुपए लिया था और करंट ईयर में भी आपने 1 लाख रुपए लिए। ओपनिंग बैलेंसेस में दे हैव गिवन के एंट्रेंस डोनेशन 1 अप्रैल 2015 को आपके पास लोगों के 1 लाख रुपए थे जिसको अभी तक आपने मेंबरशिप अलॉट नहीं की, तो वो पुराना 1 लाख। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दे हैव गिवन के एंट्रेंस डोनेशन 1 लाख, दैट इज अ रिसिप्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलवेज फॉलो अ कैश प्रिंसिपल, यानी 1 लाख रुपए पुराना था और 1 लाख रुपए आपने करंट ईयर में रिसीव किया, टोटल हो गया आपके पास 2 लाख रुपए। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 टुगेदर विद 7। पहले 7 रीड करते। 7 क्या बोल रहा है? एक पर्टिकुलर मेंबर ने 2015 अक्टूबर में 20,000 रुपए दिए। अक्टूबर 15 यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में आएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको रिसिप्ट में 1 लाख रुपए दिया है, तो वो 1 लाख रुपए में ये जो 20,000 रुपए ऑब्वियसली ये इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ सम ऑफ ₹20,000 रिसीव इन अक्टूबर 15, वो 1 लाख रुपए में 20,000 रुपए भी इंक्लूडेड है। तो ओपनिंग के 1 लाख और करंट ईयर में यू हैव रिसीव 1 लाख, टोटल हो गए आपके 2 लाख। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 7 में a sum of 20,000 received in October 15 as entrance donation from an applicant
was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. Refund was made on 3rd June 16, यानी आपने रिफंड नेक्स्ट ईयर पे किया, यानी अभी टोटल एंट्रेंस डोनेशन आपके पास पुराना 1 लाख था, करंट ईयर में 1 लाख रुपए आपने रिसीव किया, टोटल हो गए 2 लाख। अब 2 लाख में से वो ऐसा बोल रहा है कि 20,000 रुपए आपको एक मेंबर को रिटर्न देने हैं, क्योंकि उसने मेंबरशिप के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो पूरे नहीं किए, तो उसको रिफंड देना है। यानी 2 लाख में से 20,000 रुपए आपके नहीं है, 20,000 रुपए वो मेंबर के, दैट 20,000 विल बी शोन एज अ लायबिलिटी। अब हो गए टोटल 2 लाख। 2 लाख में से वो क्या बोल रहा है, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4, 50% of the entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 16, यानी 20,000 रुपए के अलावा कोई भी मेंबरशिप अब पेंडिंग नहीं थी। तो अभी टोटल एंट्रेंस डोनेशन आपके पास पुराना 1 लाख है, करंट ईयर में यू हैव रिसीव 1 लाख, टोटल हो गए 2 लाख। 2 लाख में से आपको 20,000 रुपए रिफंड देने हैं, टोटल बचे 1,80,000। 1,80,000 में से वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज, यानी 1,80,000 का 50% होगा हाफ, 90,000। तो 1,80,000 में से 90,000 रुपए वो बोल रहा है कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करो यानी शो इट इन अ बैलेंस शीट, दिस साइड इट इज अ अमाउंट यू हैव रिसीव, इट इज मेंबर्स अमाउंट, दैट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। तो 1,80,000 में से 50% होते हैं 90,000 जिसको आपने कैपिटलाइज करा, तो बचे 50% को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इट शुड बी शोन एज अ रेवेन्यू, तो दैट अमाउंट विल गो टू योर इनकम साइड। तो टोटल हो गए पुराना 1 लाख, करंट ईयर में यू हैव रिसीव 1 लाख, टोटल हो गए 2 लाख। 2 लाख में से 20,000 रुपए आपको रिफंड देना है, क्योंकि वो मेंबर ने मेंबरशिप की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है। तो 2 लाख में से 20,000 रिफंडेबल है, जो आप लायबिलिटी में बताएंगे। बचे 1,80,000, 1,80,000 में से वो बोल रहा है कि 50% कैपिटलाइज करो, 50% रेवेन्यू में दिखाओ। 50% कैपिटलाइज करो, इसका ही मतलब है कि बैलेंस रेवेन्यू में बताओ। नाउ डोंट आस्क कि 50% रेवेन्यू में बताओ, ऐसा कहा दिया हुआ है। इट इज अज्यूम कि इफ certain amount is capitalized and the balance amount should be shown as a revenue. तो 1,80,000 का 50% 90,000 will go to balance sheet and remaining 90,000 will be shown as a income which you have received from the members. So this is all about adjustment number 4 and adjustment number 7. Adjustment number 5 क्या बोल रहा है, the cost of the asset sold net as on 1st April 15 was 10,000. अभी वो क्या बोल रहा है कि cost of the asset sold as on 1st April 15 was 10,000. Now if you look at the opening balance sheet, previous page, उसमें फिक्स एसेट की वैल्यू दी हुई है 5 लाख। अब 5 लाख में से एक एसेट ऐसा है जिसको आपने करंट ईयर में बेचा, तो उसकी नेट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, वो बोल रहा है नेट ओरिजिनल वैल्यू 10,000 रुपीज थी। अगर आप रिसिप्ट साइड देखोगे तो वहां पे दिख रहा है, देखिए सेल ऑफ एसेट 8,000। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास 5 लाख रुपए का एसेट था, उसमें से एक पर्टिकुलर एसेट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल यानी ओरिजिनल नेट वैल्यू 10,000 रुपीज थी, जिसको आपने 8,000 रुपए में बेचा, जो रिसिप्ट साइड दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि 10 रुपए का नेट वैल्यू ऑफ एसेट यू हैव सोल्ड इट फॉर 8,000, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 2,000। 10,000 रुपीज वाला वैल्यू ऑफ एसेट आपने 8,000 रुपीज में बेचा, आपके रिसिप्ट साइड दिख रहा है, यानी 2,000 रुपीज इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। दैट 2,000 रुपीज विल बी शोन अंडर एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज अ लॉस, बराबर। अब डेप्रिसिएशन कैसा काउंट होगा, 5 लाख रुपए के एसेट आपके पास थे, उसमें से आपने 10,000 रुपए का एसेट 8,000 रुपए में बेचा, तो यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द ओरिजिनल नेट वैल्यू। तो 5 लाख रुपीज का नेट वैल्यू एसेट में से 10,000 रुपीज का नेट वैल्यू वाला एसेट आपने सेल कर दिया, बचे आपके पास 4,90,000। आपने करंट ईयर में कोई एसेट परचेस किया है क्या? अगर परचेस किया होगा तो आपके पेमेंट में दिखेगा। तो क्या पेमेंट में एनी परचेज ऑफ एसेट इज सीन?
you don't see any kind of an asset. Glass and table linen is a revenue expenditure which will go to the expenditure side. So that is not your asset. Similarly, crockery and cutlery is also not your asset unless it is stored. तो यहाँ पे 5 लाख रुपीस का एसेट है, उसमें से 10,000 रुपए का एसेट 8,000 रुपए में बेचा, तो विल सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नेट वैल्यू 5 लाख माइनस 10,000 विल बी 4,90,000. Now what is about depreciation they are giving under point number 6 next page. Depreciation has to be provided at the rate of 10% on asset. यानी 5 लाख का एसेट था, उसमें से 10,000 रुपए का एसेट आपने बेच दिया 8,000 में, तो 10,000 माइनस करेंगे, बैलेंस इज 4,90,000. 4,90,000 पे 10% depreciation will be 49,000 will be shown under expenditure and will be subtracted from asset. Then point number 8 is purchase made during the year amounted to 15 lakh. Purchase किसका? ये सब चीजों का जो आप सेल कर रहे हो, जैसे कि कॉफी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, इसके परचेज 15 लाख के हुए. तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक 3,80,000 रुपए का था, आपने 15 लाख रुपए का परचेज किया. परचेज किसका? कॉफी का, सॉफ्ट ड्रिंक का. तो आपके पास वर्किंग नोट नंबर 1, आपके पास परचेज कौन कौन सी चीजों का था? तो इट हैज बीन गिवन What name should be given to working note, वो मैं बताता हूं. आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉफी वगैरह कितना था? 3,80,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है. आपने करंट ईयर में कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का परचेज कितना किया? 15 लाख का. आपके पास टोटल स्टॉक कितने का हो गया? 3,80,000 प्लस 15 लाख विल बी 18,80,000. नाउ इफ यू रिफर द इंफॉर्मेशन which they have given in point number 9, the value of closing stock was 2,10,000. यानी आपके पास टोटल स्टॉक 18,80,000 का था, उसमें से 2,10,000 का स्टॉक आपके पास बैलेंस है एज ऑन 31st March 16. Less closing stock. How much? 2,10,000. What is the net value? 16,70,000. Now what is this 16,70,000? 16,70,000 आपका ओपनिंग स्टॉक विल बी एट कॉस्ट, परचेज विल ऑल्सो बी एट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो बी एट कॉस्ट. यानी ये जो 16,70,000 रुपए आए, आपके पास 3,80,000 का स्टॉक ऑलरेडी था, 15 लाख का आपके पास आपने स्टॉक परचेज किया, आपके पास हो गया 18,80,000, उसमें से 2,10,000 का स्टॉक बैलेंस है. यानी ये 16,70,000 रुपए क्या है? तो ये उस माल का कॉस्ट है जो आपने आपके मेंबर्स को बेचा है, यानी प्रोवाइड किया एज अ सर्विसेज. तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो माल आपने आपके मेंबर्स को बेचा उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यू कैन कॉल इट एज COGS. दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो दिस वर्किंग नोट इज ऑल अबाउट cost of goods sold.
Further, what it says, you have taken point number 8, point number 9, point number 10 is the club as a matter of policy charges off to income and expenditure account all the purchases made on account of crockery, cutlery, glass, linen in the year of purchase. That means crockery, glass, linen, ये सब चीजों को आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना है, ना कि उसको एसेट बताना है. मैंने इसीलिए बोला कि ये चीज शुड नॉट बी ट्रीटेड एन एसेट अनलेस एंड अंटिल इट इज टोल्ड. यहाँ पे क्लियरली प्रॉब्लम में दिया है कि ग्लास, लिनेन, क्रॉकरी, all those should be treated as a revenue expenditure. That means it will go to your income and expenditure account and should not be treated as an asset. Generally it is not treated as an asset because glass, linen वगैरह इनकी लाइफ जो है वो 1 year से कम होती है. So that's the reason it is not general. In the case of such kind of a clubs, हालांकि आप आर्ग्यू करेंगे कि घर में तो क्रॉकरी 1 साल से ज्यादा चलती है, तो घर में क्रॉकरी रेगुलरली यूज नहीं होती है, यहाँ पे रेगुलरली यूज होती है, तो उनका लाइफ इज शॉर्टन लेस देन 1 year. तो दैट इज द रीजन इट इज जनरली ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एसेट अनलेस एंड अंटिल इट इज टोल्ड. फाइन. तो हियर ऑल दिस थिंग्स शुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट दे वांट अस टू डू इज, you are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 16 and the balance sheet as on 31st March 16 along with the necessary workings. तो वो आपको करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल हैव टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट आल्सो इन ऑर्डर टू असर्टेन द ओपनिंग कैपिटल फंड. कम ऑन, विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अभी आप एक चीज देखोगे, तो मैंने आप लोगों को वर्किंग नोट बताया जिसमें बोला कि ये जो आपने सर्विसेज या जो आपने गुड्स आपके मेंबर को प्रोवाइड किए उसकी कॉस्ट कितनी है, 16,70,000. और अगर आप रिसीप्ट साइड देखोगे तो यू कैन सी दैट कि आपने ये सब चीजें जो आपके मेंबर्स को प्रोवाइड की उससे आपको पैसा कितना आया. तो यू कैन सी दैट देयर इज ऑन रिसीप्ट साइड देयर इज अ रिसीप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल एंड टेनिस कोर्ट. तो ये सब चीजें आपने आपके मेंबर्स से रिसीव की, यानी ये जो 16,70,000 रुपए का माल आपने आपके मेंबर्स को बेचा, वो कितने में बेचा, ये चारों चीजों का समेशन. यू कैन कॉल इट एज ए. एंड वर्किंग नोट नंबर 1, सॉरी हियर वर्किंग नोट नंबर 1 में लेते रिसीप्ट फ्रॉम अबव सेल्स. ये जो 16,70,000 रुपए के आपने गुड्स आपके मेंबर्स को प्रोवाइड किए, तो उससे आपको जो पैसा आया वो कितना आया, उन्होंने रिसीप्ट साइड दिया हुआ है. हाउ मच. कॉफी रूम से पैसा कितना आया आपको, 10,70,000. उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक से हाउ मच यू हैव रिसीव्ड. सॉफ्ट ड्रिंक से आपको पैसा आया 5,10,000. उसके बाद स्विमिंग पूल से 80,000. स्विमिंग पूल से यू हैव रिसीव्ड 80,000. टेनिस कोर्ट से जो बॉल्स वगैरह होंगे, रैकेट्स वगैरह जो आपने आपके मेंबर्स को, उसका भी परचेज हो सकता है इसमें इंक्लूड. वहां से 1,02,000 रुपीज यू हैव रिसीव्ड. इतना माल बेचने का कॉस्ट और यहाँ से इतना आपको पैसा आया, टोटल रिसीप्ट कितना अमाउंट है. दिस विल बी कॉल्ड एज बी. हाउ मच यू हैव रिसीव्ड, 10,70,000 प्लस 5,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,02,000. This amounts to
17,62,000। दैट मीन्स 16,70,000 रुपए के गुड से आपने 17,62,000 रुपीज बेच के रिसीव किए। नेट रिसीव कितना हो गया, या यू कैन कॉल इट एज नेट सरप्लस और नेट प्रॉफिट। दिस विल बी बी माइनस ए। हाउ मच? 92,000. So one thing you can do is you can show this 16,70,000 as your expenditure under income and expenditure account, and this total receipt B can be shown on the receipt side. So purchase cost of goods cost of goods sold can be shown on the expenditure side, and this receipt can be shown on the income side. So you will obviously receive net income, or otherwise simply directly show this 90,000 on the income side, because ये वाला माल आपने इतने में बेचा तो 92,000 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है, तो 92,000 you can show it on the income side. Fine. One more working note I want you to cover is about sundry creditors. Now sundry creditors, you can see that कि ओपनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट जो आपको इंफॉर्मेशन दी है एज ऑन 1 अप्रैल 2015, वहां पे आपको क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1,12,000. दैट इज योर ओपनिंग क्रेडिटर्स. फर्दर आपको एडजस्टमेंट में वो बोल रहा है कि आपने परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर इज ऑफ 15 लाख, यानी 2,10,000 रुपए क्रेडिटर्स को 1,12,000 ओपनिंग क्रेडिटर है 1,12,000, तो 1,12,000 रुपए आपको आपके क्रेडिटर्स को देना बाकी थे. 15 लाख का और माल आपने परचेज किया, तो टोटल हो गए 1,12,000 प्लस 15 लाख यानी 16,12,000. और आपको पेमेंट में कितना दिखा रहा है क्रेडिटर्स? पेमेंट साइड अगर आप देखोगे तो वो बोल रहा है क्रेडिटर्स को आपने 15,20,000 रुपए दिए, यानी 1,12,000 रुपए पुराने देने बाकी थे. करंट ईयर में 15 लाख रुपए का माल आपने परचेज किया और आपने 15,20,000 रुपए क्रेडिटर्स को दिए. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन कंबाइंड टुगेदर will help you to calculate a closing creditors. So we'll calculate a closing creditors. Calculation of closing creditors, sundry creditors. Now creditors will always show a credit balance. So opening creditors will be on the credit side by balance brought down. That is opening creditors. Opening creditors आपको कहां से मिलेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में से. उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो वहां पे दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,12,000. करंट ईयर में आपने 15 लाख का माल परचेज किया. It is assumed that it is a credit purchase because they have not given any information about cash purchase on the payment side. उन्होंने सिर्फ आपको क्या बोला है, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट दिया है, लेकिन उन्होंने कैश परचेज बताया नहीं. तो विल अज्यूम दैट ये 15 लाख का जो परचेज है वो क्रेडिट में परचेज है. एंड व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज फ्रॉम क्रेडिटर्स? डेबिट. What comes in purchase account debit to credit the giver, that is sundry creditors. कितने का माल परचेज किया है आपने? 15 लाख का. तो ये 15 लाख का जो माल परचेज किया है वो यहां पे आएगा बाय परचेजेस. हाउ मच? 15 लाख. सेकेंड वो क्या बोल रहा है, आपके पेमेंट साइड उन्होंने 15,20,000 रुपए क्रेडिटर्स को पे किए. व्हाट इज अ जनरल एंट्री यू वांट टू पास फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स? डेबिट द रिसीवर. हु इज द रिसीवर? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या दिया है आपने उनको? पैसे, वो पेमेंट साइड आपके दिख रहे हैं। तो कैश और बैंक, कितना अमाउंट दिया आपने? 15,20,000, इतना ही है ना, 15,20,000 ही है ना? यस। तो कहा जाएगा? टू कैश और बैंक, ये ऑलरेडी आपके पेमेंट साइड दिख रहा है। हाउ मच? 15,20,000, 1,12,000 रुपए देने थे, 15 लाख का आपने माल परचेज किया, टोटल अमाउंट पेएबल हो गया 16,12,000। 16,12,000 में से 15,20,000 रुपए आपने पे कर दिए। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग क्रेडिटर्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ क्लोजिंग क्रेडिटर्स एज ऑन 31st March 16, बराबर। 31st March 16 को ये आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना आता है? देखिए क्लोजिंग बैलेंस, दिस विल बी 92,000। This is a value of closing creditors. This will come under the current year balance sheet. बराबर। अब they have given the information of 1st April 2015. So in the working note itself will prepare the opening balance sheet in order to ascertain the opening capital fund. Just will prepare that. Working note number 3, opening balance sheet as on 1st April 15. What is an objective? To prepare to ascertain the opening capital fund. With the help of this, we'll prepare all the information they have given. Liabilities, amount, assets, amount. Now just we'll try to incorporate all the information which they have given. First one is fixed asset net 5 lakh. Fixed asset net is after depreciation. आपके पास 5 लाख रुपए के एसेट्स थे, then what else they have given? Stock. पिछले साल आपके पास कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक का स्टॉक कितने का था? 3,80,000 रुपए, जो आपने यहाँ लिया है। फर्दर व्हाट यू हैव? 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख, 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके पास थी। ये इन्वेस्टमेंट कितने? 5 लाख रुपए के आपके पास थे, 12%। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल आपको कुछ मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन फीस आना बाकी था, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम इज अ एसेट। हाउ मच? 12,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का था आपको? 12,000, 12,000 रुपए आने बाकी थे। फाइन। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दिया था पिछले साल, यानी वो एडवांस में पे किया था, यानी वो करंट ईयर के। तो कितना पे किया था? 1,000। दैट इज ऑल्सो एन एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज योर एसेट। कितना एडवांस में पे किया था? ₹1,000। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको क्रेडिटर्स को पैसा देना बाकी था, 1,12,000।
1,12,000 रुपए आपको सनली क्रिएटर्स को देने बाकी थे। 1,12,000 फाइन। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, पिछले साल आपको कुछ मेंबर्स ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन किया था, तो इनकम रिसीव इन एडवांस इज योर लायबिलिटी। हाउ मच? 15,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, हाउ मच? कुछ मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था, कुछ मेंबर्स ने एडवांस में दे दिया था। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2014-15 के थे, और ये अमाउंट जो एडवांस में आ गए थे वो 2015-16 के थे, बराबर। उसके बाद एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग मेंबरशिप, आपने कुछ न्यू मेंबर्स से एंट्रेंस डोनेशन लिया था जिसको अभी तक मेंबरशिप आपने दी नहीं है, दैट इज योर लायबिलिटी। एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, पेंडिंग मेंबरशिप कितना? 1,00,000 रुपए आपने रिसीव किया। उसके बाद ग्रेचुटी फंड, एनी काइंड ऑफ ए फंड इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। आपने ग्रेचुटी फंड, लोगों का पैसा ग्रेचुटी के लिए फंड लिया है, ग्रेचुटी फंड 1,50,000। This is the information they have given. Apart from that, receipt and payment includes opening cash and bank balance. Cash and bank. कितना बैलेंस है कैश का? 10,000 और 3,850। इस ओपनिंग बैलेंस 1,415 को ये आपके रिसिप्ट साइड दिख रहा है। रिसिप्ट साइड इट इज ऑलरेडी सी। This is your opening cash, बराबर। With the help of this, you will try to calculate a opening capital fund. तो कितना आएगा देखिए, this is 10,29,850. 10,29,850. This is your opening capital fund. This is your balancing figure. This is your balancing figure. Total is 140,6850. So this is about opening balance sheet. This is about opening balance sheet. Just copy this. Cost of goods sold received from above sale. This has been given on receipt side. This has been already given. This has the amount received. This is the purchase value. Cost of goods sold, cost of goods sold, जो आपने माल बेचा उसका कॉस्ट, कितने में बेचा, इतने में, नेट इज योर इनकम प्रॉफिट। दिस इज अ वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स दैट विल बी शोन अंडर द बैलेंस शीट, एंड दिस इज एन ओपनिंग कैपिटल फंड। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग नोट वी आर गोइंग टू यूज दिस अमाउंट, एंड हियर
you are going to use this amount in a closing balance sheet, and here you are going to use this value will be shown under income side. Fine. So just copy this. Now we will take the solution, that is current year income and expenditure and the balance sheet. We will prepare that. Come on, we will prepare the solution. Income and expenditure account of Lions Club for the year ending March 2016. Inner column, outer column, inner column and outer column. This is a credit side, this is a debit side, working on the principal mercantile system. Here, this is expenditure. Expenditure, amount, this is income, again amount, and here we are going to prepare the closing balance sheet. Balance sheet of Lions Club as on 31st March 16. Inner column, outer column, you have liabilities, amount, assets, amount. We'll start preparing. Now, opening capital fund we have already done. I'm just writing down there. Opening capital fund. Here just write down working note number. I think this working note number 3, 10,29,850. This you have already done. One more working note we have prepared for
creditors, that also I am writing over here, sundry creditors. This is working note number 2. And what was the value of closing creditors? We have already done. Working note number 2 के हिसाब से creditors कितने आ रहे थे? 92,000. These are written in the inner column because there will be surplus or deficit from income and expenditure account. Then we have sundry creditors, working note number 2, 92,000. And one more working note we have calculated, that is receipt, net receipt. That is your income by net receipt from sale of coffee, soft drinks, etc. वो कितना आ रहा है आपको? We have already calculated that, and that amount was how much? That was again 92,000. यहाँ पे working note number 1. What you can do is you can write here all the purchases, जो cost of goods sold जो आपने calculate किया था under working note 1, वो यहाँ पे gross value, and whatever amount you have received that has been shown on the receipt side over here, you will get the same answer. तो ये working note we have calculated. Now we'll just first cover all the adjustment and we'll try to solve this problem. What they have given: subscription received in advance as on 31st March 16 were 18,000. अभी when you look at the receipts and payment, तो total subscription receive है 2,02,750. Now previous two problems में we have seen that they have given separate value year wise. Here they have not given year wise, consolidated value they have given. तो ये कंसोलिडेटेड वैल्यू में पिछले साल के फिगर जो करंट ईयर में रिसीव हुए, जो नेक्स्ट ईयर के फिगर्स करंट ईयर में रिसीव हुए, वो सब अमाउंट जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इट विल बी अज्यूम कि वो करंट ईयर में रिसीव हो गया, और जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है वो भी करंट ईयर में रिसीव हो गया. ये 2,02,750 में रहेगा. यानी ये 2,02,750 में जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो भी रहेगा, और जो करंट ईयर के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है दैट इज फॉर 16-17 वो भी रहेगा. यानी ये 2,02,750 में 2014-15 का भी अमाउंट रहेगा, 2015-16 का तो रहेगा ही रहेगा, और 2016-17 का भी रहेगा. तो आपको इसमें से पिछले साल का अमाउंट और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आना बाकी है उसको ऐड करना पड़ेगा अंडर इनकम. तो विल सॉल्व दिस. व्हाट इज द अमाउंट दैट गिवन बाय सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड? 2,02,750. 2,02,750 में विल अज्यूम कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में रिसीव हो गया होगा. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में से मिलेगा. वो कितना अमाउंट था? यू कैन सी दैट वो 12,000 रुपए थे, बराबर. यानी ये 2,02,750 में जो पिछले साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल वर्क ऑन द एक्चुअल प्रिंसिपल एंड इट विल इंक्लूड ओनली दैट पर्टिकुलर अमाउंट व्हिच बिलोंग्स टू द करंट ईयर. तो ये 2,02,750 में व्हाट इज एन अजम्पशन कि पिछले साल का अमाउंट जो 12,000 आउटस्टैंडिंग था वो रिसीव हो गया होगा, तो वो करंट ईयर का नहीं है, इसलिए विल सबट्रैक्ट दैट. लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2014-15 जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है वो कितना अमाउंट है? 12,000. उसको करेंगे आप माइनस. उसी तरह जो करंट ईयर का एडवांस में रिसीव हो गया है, उन्होंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 16 इज 18,000. यानी वो 18,000 रुपए जो रिसीव हुए वो ऑब्वियसली ये अमाउंट में इंक्लूड होंगे, तो वो भी माइनस करेंगे. रिसीव फॉर
2016-17 वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 15-16। ये दोनों अमाउंट करंट ईयर के नहीं है, इसलिए इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। और जो अमाउंट करंट ईयर के है, जैसे कि पिछले साल एडवांस में रिसीव हुआ था, वो करंट ईयर का रहेगा। पिछले साल जो एडवांस में रिसीव हुआ था वो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है, वहां पे लिखा है, देखिए लायबिलिटी साइड जो अभी मैंने बनाया, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 15,000, जो पिछले साल आपको मिल गया था करंट ईयर का, वो ऐड करेंगे, प्लस रिसीव इन 2014-15 फॉर 2015-16, ये एडवांस में जो पिछले साल मिला था इसको करेंगे ऐड, रुपीज 15,000 आपको एडवांस में मिलेगा। करंट ईयर के अंदर कुछ मेंबर्स के पैसे आने बाकी है, करंट ईयर का है, तो वो करंट ईयर में आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड होंगे। करंट ईयर के आने बाकी कितने, पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 16 इज 7,000, 7,000 रुपए आने बाकी है, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015-16 कितने आने बाकी है, ₹7,000। तो करंट ईयर का एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, देखिए वंस अगेन 2,02,750 रुपए आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, रिसिप्ट साइड दिया हुआ है, अलग अलग करके नहीं दिया है, इसलिए विल अज्यूम दैट के सभी एडजस्टमेंट ये 2,02,750 में कवर है। अब ये 2,02,750 में पिछले साल के जो बकाया थे वो अज्यूम करेंगे कि करंट ईयर में आ गए, तो पिछले साल के कितने बकाया थे, 12,000, तो वो करंट ईयर के नहीं है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको माइनस किया। करंट ईयर में आपने कुछ एडवांस में रिसीव किया है जो आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडवांस में करंट ईयर में रिसीव किया है वो नेक्स्ट ईयर के 16-17 के, वो भी माइनस किए, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही अमाउंट लेते हैं जो करंट ईयर का है। और ये वाले जो दो अमाउंट है, ये अमाउंट पिछले साल आपको मिल गया था करंट ईयर का, तो वो ऐड किया, और करंट ईयर में ये अमाउंट आपको आना बाकी है तो उसको भी ऐड किया, तो नेट अमाउंट कितना हो गया, this is 1,94,750. 1,94,750 is a subscription for current year. Fine. Next adjustment में क्या बोल रहा है, पहले ये जो एडजस्टमेंट है आपके उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो आपका लायबिलिटी आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये 2016-17 का जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में आपको एडवांस में मिला है, वो कितना मिला है करंट ईयर में एडवांस में, 18,000 रिसीव इन एडवांस। उसके अलावा करंट ईयर में आपके 7,000 रुपए आने बाकी है, दैट इज योर एसेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, हाउ मच यू आर गोइंग टू सपोज टू रिसीव, ₹7,000। तो 18,000 रुपए आपके एडवांस में आ गए और 8,000 रुपए, सॉरी 7,000 रुपए आपको आना बाकी है। तो ये दो चीजें, डबल एडजस्टमेंट वी हैव taken, double dual transaction. Then it says point number 3 is outstanding expenses, salary 8,000 and electricity 15,000. Salaries और electricity पे करना बाकी है, that is an expenditure. 2 salaries. Salaries आपके रिसिप्शन पेमेंट में कितना दिया हुआ है, 1,20,000. आउटस्टैंडिंग कितना है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया हुआ है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में, 28,000।
प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है? 15,000। This is 43,000. इसका ड्यूल इफेक्ट, इट इज अ अमाउंट पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल। Outstanding salary is 8,000, electricity 15,000. Dual effect we have taken. Next one is about entrance donation. Entrance donation क्या बोल रहा है कि entrance donation, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ अमाउंट आप उसको या तो रेवेन्यू ट्रीट कर सकते हो या कैपिटल ट्रीट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन के बायलॉज में क्या लिखा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एंट्रेंस डोनेशन जो है उसको 50% आपको रेवेन्यू ट्रीट करना है, 50% कैपिटल। अब एंट्रेंस डोनेशन का अमाउंट कितना है? एंट्रेंस डोनेशन पिछले साल आपको 1 लाख रुपए आया था जिसका मेंबरशिप पेंडिंग था। करंट ईयर में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? कंबाइनिंगली इन्फॉर्मेशन नंबर 4 एंड इन्फॉर्मेशन नंबर 7। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 4 और 7 के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 20,000 रुपए आपको रिफंड देने हैं, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने उनकी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए आप उनको रिफंड दे दे रहे। और बाकी एज ऑन 31 मार्च 2016 नो मेंबरशिप इज पेंडिंग। तो टोटल अमाउंट व्हाट यू हैव रिसीव कितना आया है आपको पिछले साल बाय एंट्रेंस डोनेशन? रिसीव्ड लास्ट ईयर, दैट इज इन 14-15 जिसका मेंबरशिप पेंडिंग था 1 लाख। करंट ईयर में यू हैव रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिख रहा है 1 लाख, रिसिप्ट साइड दिख रहा है, टोटल हो गए आपके 2 लाख बराबर। अब उसमें से आपको 20,000 रुपीज रिफंड देने हैं। हाउ मच यू हैव टू गिव रिफंड? 20,000, बिकॉज वो पर्सन ने मेंबरशिप के क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई नहीं किए। तो यहाँ पे अमाउंट रिफंडेबल इज 20,000। तो आपका हो गया 1,80,000। अब 1,80,000 में से वो क्या बोल रहा है कि 50 रेवेन्यू ट्रीट करो और 50 कैपिटल, यानी हाफ ऑफ द अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। लेस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, हाउ मच यू आर ट्रांसफरिंग टू बैलेंस शीट? 50%, दैट इज 90,000। तो बैलेंस अमाउंट यहाँ पे कितना आप बताओगे? 90,000। हाउ मच यू हैव टू शो? 90,000 rupees is the amount you have to show, and balance 90,000 will go to your balance sheet. Capital, लोगों से आया हुआ पैसा, it is your liability, it is a fund, so you show it over here. Either you can add to opening capital fund or you can show over here entrance donation. Entrance donation कितना? 90,000। अब देखिए टोटल 2 लाख रुपए किस तरीके से डिवाइड हुए। 2 लाख में से 90 यहाँ आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 90 यहाँ चले गया बराबर। टोटल हो गया आउट ऑफ 2 लाख, 1 लाख पिछले साल आया था, 1 लाख करंट ईयर आया, टोटल 2 लाख। 2 लाख में से 90,000 इनकम, 90,000 लायबिलिटी, बैलेंस बचे 20,000। 20,000 आपको मेंबर को रिटर्न देने हैं, तो दैट इज ऑल्सो योर लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल, क्योंकि ये आपने रिफंड कब किया है? 3 जून 2016, यानी नेक्स्ट ईयर किया है, तो रिफंड देना बाकी है, तो दैट इज योर लायबिलिटी। ये हो गया 20,000। नाउ यू कैन सी दिस कि ये 90 प्लस ये 90 टोटल 180 और ये 20 टोटल हो गया आपकी ₹2 लाख। So this is how you have to solve this. Then you have cost of assets sold net as on 1st April 15 is 10,000. आपने 10,000 रुपए का एसेट
बेचा, और कितने में बेचा तो उन्होंने वहां बताया 8,000 रुपए में बेचा। रिसिप्ट साइड आपके दिख रहे 8,000, यानी आपको लॉस कितना हुआ 2,000। लॉस कहां पे बताऊंगे आप, एक्सपेंडिचर से। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नेट वैल्यू कितना था 10,000, लेस sold for 8,000. So what is the loss? Loss is 2,000. Got it? आपका एसेट की ओरिजिनल नेट वैल्यू कितनी थी एज पर ओपनिंग बैलेंस शीट, उन्होंने दिया हुआ है 5 लाख। फिक्स एसेट नेट 5 लाख रुपए का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें से 10,000 रुपीज जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो माइनस करेंगे, ना कि 8,000, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू में से ओरिजिनल नेट वैल्यू 5 लाख, तो उसमें से ओरिजिनल नेट वैल्यू लेस एसेट सोल्ड 10,000, तो आपके पास नेट एसेट कितना हो गया 4,90,000। Have you purchased any asset during the current year? अगर परचेज किया हुआ रहता था तो आपके पेमेंट साइड दिखता था, लेकिन पेमेंट साइड कोई एसेट परचेज नहीं किया। अब वो क्या बोल रहा है कि डेप्रीसिएशन आप चार्ज करो एट द रेट ऑफ 10%। 10% आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन 4,90,000 विल बी 49,000। 4,90,000 में से 49,000 डेप्रीसिएशन, तो माइनस करके विल बी 4,41,000। 49,000 का ड्यूल इफेक्ट एक्सपेंडिचर टू डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट विल बी हाउ मच, रुपीज 49,000। Got it? Now see, total value of fixed asset is 5 lakh opening value। अब ये 5 लाख का डिवीजन कैसा हुआ, 5 लाख में से 4,41,000 आपके बैलेंस शीट में, 5 लाख माइनस 4,41,000, बैलेंस अमाउंट विल बी हाउ मच, विल बी 59,000। 59,000 में से यू कैन सी ओवर हियर, 59,000 में से 49,000 यहाँ आ गए, बचे 59 में से 49 गए 10,000। 10,000 में से 2,000 का लॉस इधर आ गया एक्सपेंडिचर में, बचे 8,000। 8,000 रिसिप्ट साइड आपका दिख रहा है, बराबर। तो दिस इज हाउ द डिवीजन हैज बीन मेड। तो यू हैव कंप्लीटेड विद एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट नंबर 8 और एडजस्टमेंट नंबर 9। एडजस्टमेंट नंबर 8 इज परचेज 15 लाख जो आपने ऑलरेडी ले लिया है और उसका नेट वैल्यू आपने यहाँ पे बताया है। एडजस्टमेंट नंबर 9 इज क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट नंबर 8 जो परचेज है उसका ड्यूल इफेक्ट कैसा आ रहा है, एक इफेक्ट इसमें कवर हो गया और एक इफेक्ट क्रेडिटर्स का लेजर जो आपने बनाया उसमें कवर हो गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 है। 2,10,000 रुपए का ड्यूल एडजस्टमेंट फर्स्ट हैज बीन कवर्ड अंडर एडजस्ट वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट क्लोजिंग यहां पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितने का है वो बोल रहा 2,10,000। और उसके अलावा उन्होंने बोला है क्रॉकरी, ग्लास, लिनन, ये सब आपको रेवेन्यू ट्रीट करना है एक्सपेंडिचर। विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव कवर्ड ऑल द एडजस्टमेंट। एक है हिडन एडजस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट पे 12%। तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपनिंग कितना है 5 लाख का, 5 लाख के ऊपर 12%, 5 लाख पे 12% कितना होगा, आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 12% से 60,000 रुपए का आपको ब्याज मिलना चाहिए। और आपको ब्याज एक्चुअली में मिला कितना है वो आपके रिसीव साइड दिख रहा है। देखिए इंटरेस्ट रिसीव 58,000 यानी 2,000 अभी भी रिसीवेबल है। तो इंटरेस्ट का आएगा आपके इनकम साइड बाय इंटरेस्ट। कितना रिसीव हुआ इंटरेस्ट 58 प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल हिडन एडजस्टमेंट 2,000।
टोटल विल बी 60,000. 2,000 का सेकेंड इफेक्ट का आएगा, इट इज इनकम रिसीवेबल एसेट, इंटरेस्ट रिसीवेबल ₹2,000. ठीक है. With this we have completed all the adjustment. Now we'll post all the amount which has been given in receipts and payment and opening balance sheet में जो amount है जो आपने अभी तक include नहीं किए वो include करेंगे. तो पहले we'll cover the opening balance sheet and we'll try to incorporate all the item. तो पहला आइटम है आपका फिक्स एसेट, वो आपने ले लिया. दूसरा स्टॉक 3,80,000 रुपए, वो आपके वर्किंग नोट नंबर 1 में चला गया. इन्वेस्टमेंट 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पिछले साल का 5 लाख था. करंट ईयर में आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा नहीं है. बेचा और खरीदा रहता था तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में आता था, तो एज इट इज है. तो यहाँ पे 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाउ मच? 5 लाख. ये 5 लाख रुपए आपके एज इट इज है. उसके बाद है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे. करंट ईयर में आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो आपने रिसीव कर लिया, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, बराबर. वो एडजस्टमेंट ट्रांसफर. नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000. पिछले साल का इंश्योरेंस, पिछले साल आपने 1,000 रुपए एडवांस में इंश्योरेंस पे किया था. तो पिछले साल एडवांस में पे किया था यानी वो अमाउंट कौन से ईयर का रहेगा? करंट ईयर का. तो वो यहां पे आएगा टू इंश्योरेंस. करंट ईयर में आपने इंश्योरेंस कितना पे किया है? करंट ईयर में आपने इंश्योरेंस पे किया है ₹5,000. पिछले साल आपने एडवांस पे किया था यानी ये इंश्योरेंस कौन से ईयर का था? करंट ईयर का. पेड इन 2014-15 फॉर करंट ईयर 2015-16. कितना पे किया था? सॉरी, ये इंश्योरेंस को इनर कॉलम में प्लस 1,000 रुपए आपने पिछले साल पे किए थे करंट ईयर के, वो आ गया इधर, बराबर. उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लिया है. आई एम रीडिंग बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 15. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपनिंग आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लिया है. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, पिछले साल आपने एडवांस में रिसीव किया था यानी वो करंट ईयर का था, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है. उसके बाद है एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग मेंबरशिप. पिछले साल आपने कुछ लोगों से एंट्रेंस डोनेशन लिया था लेकिन मेंबरशिप दी नहीं थी, वो एडजस्टमेंट वी हैव टेकन ओवर हियर. 50% कैपिटलाइज, 50% रेवेन्यू. उसके बाद ग्रेचुटी फंड 1.5 लाख का है एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ग्रेचुटी फंड अगर कोई चेंजेस रहते थे तो वो रिसीप्ट एंड पेमेंट में बताया जाता था, तो कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज मैं ले रहा हूं. हो गया. दैट मीन्स you have completed all the adjustment, you have completed all the figures of opening balance sheet. Now come to receipts and payment. Receipts and payment में opening cash and bank you have already taken under the opening balance sheet. Subscription receipt you have taken, entrance donation you have taken, interest receipt you have taken, sale of asset you have taken, miscellaneous income will be income by miscellaneous income. How much? ₹9,000. Miscellaneous income is 9,000. Miscellaneous income you have taken. Then there is a receipt at coffee room, soft drink, swimming pool, tennis court. ये already आपने net income में ले लिया है, working note number 1. तो debit side, receipt side complete. Payment side you have salaries you have taken. Creditors you have taken. Creditors को payment दिया था आपने 15,20,000 का. Don't assume this as a closing creditor. It is an amount paid to creditors. That number 2. You have already done that. Then creditors को जो 15,20,000 रुपए आपने दिए वो ऑलरेडी आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में ले लिया है. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव कैलकुलेट क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स की फिगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे ले ली. उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Printing and stationery.
70,000. Then you have postage 40,000. Postage 40,000. Then you have telephone 52,000. Telephone and telex. Then you have repairs and maintenance 48,000. Repairs and maintenance 48,000 you have. Then you have glass, table linen, crockery, cutlery, garden, upkeep, membership fees. तो ग्रास, टेबल लिनिन, क्रॉकरी एंड कटलरी ये एक साथ में लिख रहा हूं. ग्लास, लिनिन, क्रॉकरी एंड कटलरी. कटलरी स्पून्स वगैरह को यू विल कॉल इट एज अ कटलरी. तो ये ग्लास, टेबल लिनिन 12,000, क्रॉकरी 14,000, टोटल 26,000 यू हैव. 26,000. उसके बाद यू हैव मेंबरशिप फीस अदर देन सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ रुपीज फर्दर यू हैव गार्डन अपकीप यानी गार्डन का मेंटेनेंस आपने 8,000 रुपए पे किया. टू गार्डन मेंटेनेंस और यू कैन कॉल इट एज अ गार्डन अपकीप. कितना पे किया? 8,000. उसके बाद है आपका टू मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन फीस यू हैव रिसीव, मेंबरशिप फीस यू हैव पेड. आपने एक मेंबरशिप फीस किसी को पे किया ₹4,000. मेंबरशिप फीस ये आपका लोगो से दिया हुआ है, ये आपने किसी और को दिया है टू मेंटेन द मेंबरशिप 4,000 4,000. उसके बाद इंश्योरेंस वी हैव टेकन, यस you have taken electricity. Lastly you have a closing cash and bank. Cash balance and bank balance. तो cash balance कितना है? Cash balance you have 8,000 and bank balance you have 2,24,600. That's it. We have posted all the figure. Now we'll calculate surplus or deficit. क्रेडिट का टोटल है आपका 4,45,750. क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 445,750. ये आपका क्रेडिट का टोटल है. डेबिट का टोटल कितना है? आपका डेबिट का टोटल है 4,76,000. दैट मीन्स डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, तो देयर इज अ डेफिसिट. कितने का डेफिसिट आ रहा है? 30,250. तो देयर इज अ डेफिसिट. वी राइट ओवर हियर बाय डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर. कितना डेफिसिट आ रहा है? डेफिसिट इज 30,250 and total will be how much? 4,76,000. और ये डेफिसिट आप यहाँ से माइनस करोगे. लेस डेफिसिट 30,250. ये आ रहा है आपका
this capital fund can be entrance donation can be combined with opening capital fund. Fine. So this is 9,99,600 plus 90,000, 92,000, 18,000, 8,000, 15,000, 20,000 and 1,50,000. तो ये आपकी टोटल कितनी आ रही है? 13,92,600. Let's see बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? 13,92,600. फाइन. यहाँ का टोटल देखते हैं एसेट का. 4,41,000, 2,10,000, 9,000, 5 lakh, 8,000 and 2,24,600. The balance sheet is getting tallied. That's it. This is all about problem number 3. Very very important problem. This is your model problem. बहुत ज़्यादा important है. So just go through this entire problem. Copy this and again same thing. कि अगर कोई डाउट है तो प्लीज कॉल मी और व्हाट्सएप में. ये लेंदी प्रॉब्लम है. एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं तो आपके माइंड, आंखें, सब चीज़ें आपको एक दूसरे से लिंक करके यहाँ पे बराबर पोस्टिंग करना है. जस्ट कॉपी दिस. So we will stop here. We will continue in the next lecture. Fine. Bye everyone.